students, today we are going to start the new chapter, the index number, and this is the last chapter of this book. Okay, so exactly we people are living in a fast changing economy, okay, and we are seeing that there is a continuous change in the population, income, money supply, output, prices of the commodity. Okay, so these are the changes in economy have their impact on the level of economic activity, income and employment, general price level. Okay, and we know also this thing that most of the value are changing, and when we are interested in knowing the extent of changes, we want to know that how much is there is a change in the consumption, production, import, export. Okay, so is for example, if you want to compare the average price level of different item food in 2014 with what it was in 2005. So this is we can measure with the help of index number. Okay, so exactly it was Carli, an Italian statistician, who has constructed the first index number as early as 1764, and he compared the prices of 1750 with that of year of 1500. Okay, so exactly he has make comparison in the year 1715 and 1500. So this is the base year, we called it a base year, and this one is called the current year. So exactly what is index number? Index number is help to measure change in the magnitude of group of related variable. दैट मीन्स अगर हमें ये देखना है कि कितना चेंजेस हुआ है, कितने एक्सटेंट में चेंज हुआ है, तो दिस इज हेल्पफुल बाय द इंडेक्स नंबर. Okay, so some of the characteristics of index number. Number one, specialized average. Okay, if I talk about the average like mean, median, mode, these can be used to compare two or more series. Okay, but if series are more, two or more series are expressed are different, अगर आपकी जो series है, if it is different, so what to do? Okay, so in that case index number help us in comparing change in the series. Are you getting my point? That specialized average means that मीन मीडियन मोड जो है वो हमें हेल्प करते हैं दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ में कंपेयर करने में. ठीक है, बट अगर आपकी सीरीज़ जो है, अगर आपकी सीरीज़ डिफरेंट सीरीज़ हैं, ओके, सो देन इंडेक्स नंबर इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट केस. It expressed in percentage. Okay, so exactly index number which is independent of unit of measurement. Okay, it helps to compare two or more index number in different situation, and percentage sign जो है we people are not using. ओके, हम वैसे परसेंटेज साइन यूज़ नहीं करते हैं इंडेक्स नंबर में, बट अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हमें ये देखना है कि चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में. ओके, नेक्स्ट इज मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम. ओके, सो इंडेक्स नंबर जो है दैट इज़ यूज टू कंपेयर चेंजेस विच टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, दैट कुड बी इन लोकेशन, कि लोकेशन वाइज कैसे चेंज हुआ. जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी डिफरेंट एट टू डिफरेंट प्लेसेस. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द हरियाणा एंड पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, तो अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो डिफरेंट है, हर प्लेस की कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. स्पेशलाइज्ड एवरेज किस में हेल्पफुल है? जब आपके डिफरेंट हो सीरीज. एक्सप्रेस इन परसेंटेज, वैसे हम परसेंटेज शो नहीं करते हैं बट इंडिपेंडेंट यूनिट को शो करता है. एंड लास्ट इज मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेशन टू टाइम, बिकॉज ईच एंड एवरी हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट. And problem in construction of index number. So we are facing some problem in the construction of index number. Number one is purpose of index number. Okay, when we are making index number, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि purpose of index number, दैट इज़ देयर इज़ नो ऑल पर्पस इंडेक्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक इंडेक्स बना लिया और वो इंडेक्स आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं. नो. ओके, जैसे मेजर द चेंज इन प्राइजेज वी हैव कलेक्टेड डाटा ऑफ क्वांटिटी, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़. दैट मीन्स आपको पहले पर्पस देखना है कि वाई यू आर कलेक्टिंग द इंडेक्स नंबर. अब आपने मेजर क्या करना है? प्राइजेज, बट आप कलेक्ट डाटा किसके कर रहे हैं? क्वांटिटी का. सो दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़.
Next is selection of base year. It means whenever we are calculating or selecting base year. Base year means अगर आप अभी 2020 है और अगर आपने base year लेना है, exactly we are taking the base year 2011 and 12, तो आपने नंबर 1 it should be normal 1. एक तो नॉर्मल 1 ईयर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें जो है वॉर हुई थी, जैसे आगे अगर अभी आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर हम लें कि 2020 को बेस ईयर लें तो ये बेस ईयर नहीं रहेगा, ठीक क्यों? क्योंकि इसमें प्राइजेज और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई और बहुत सारी चीज़ों में बहुत चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है जो डिफरेंस है बेस ईयर एंड करंट ईयर, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने 2020 के लिए बेस ईयर ले लिया 1980, तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो डाटा है, जो इंडेक्स नंबर है, वो गलत आएगा। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम, ओके, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम, इसका मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करनी है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है वो आप सारी की सारी सेलेक्ट करें, ठीक है? तो ऐसी कमोडिटीज़ को सेलेक्ट करना जो रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स विच इज शोइंग रिप्रेजेंट द अदर्स ऑल्सो, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है वो ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द कमोडिटी, तो कमोडिटी जो है अगर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी, और अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट और टाइमिंग लगेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, दैट मीन्स फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर डाटा, ओके। अगर आपका डाटा जो है वो स्कैटर्ड है ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, सो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपका डाटा मिसलीडिंग होगा। तो इसलिए बेटर है कि डाटा जो है वो रिलायबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइस कोटेशन, ओके, क्योंकि प्राइस कोटेशन का मतलब है कि अगर हम प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है, दीज आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो अब दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल ना और पॉसिबल टू कलेक्ट प्राइस कोटेशन फ्रॉम ऑल प्लेसेस। सो हमें क्या करना है कि प्लेसेस विच आर वेल नोन फॉर ट्रेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, उसका प्राइस ले लें कि जहाँ पर जो चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बिकती है, ठीक है, दैट इज़ आप वहाँ की प्राइस कोटेशन लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जो है आप प्राइजेस क्वांटिटी ले रहे हैं तो प्राइजेस कोटेड पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, जैसे शुगर है आपकी 40 रुपीज़ kg, ओके, क्वांटिटी प्राइस आर कोटेड पर यूनिट ऑफ मनी 25 ग्राम ऑफ शुगर फॉर 1 rupee, okay. Next is selection of weight, okay, weight, that weight refers to relative importance of different item, okay. We have several method for selection of weight, Fisher's method, Paasche method and Leslie method. I am going to discuss one by one all the method to selection of appropriate weights, ठीक है, कि जब भी आप मेथड, आप कोई भी एक मेथड इसमें इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ एवरेज। चॉइस ऑफ एवरेज मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ओके। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एवरेजेस जो हैं वो हमें डिफरेंट, तो आपने ये चॉइस करना है कि कौन सा एवरेज चूज़ करना है, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक मीन या डिफरेंट मीन, मीडियम मोड, कौन सा आप एवरेज चूज़ करना चाहते हैं। एंड लास्ट इज सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, ओके। हम ये नहीं कह सकते कि नो, देयर इज नो सिंगल फॉर्मूला कैन बी सेड टू बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, okay. So exactly it depend on the purpose of index number, and second is depend on data, आपके पास डाटा कौन सा अवेलेबल है, तो उसके ऊपर आपका सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला डिपेंड करता है, okay. And last next is advantages of index number. What are the advantages of index number? Number one, measurement of change in the price level. इंडेक्स नंबर हेल्प करता है किसमें, मेजर करने में, प्राइस लेवल में, कि कितना प्राइस लेवल जो है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम 2012 और 2018 का प्राइस देखें तो उसमें कितना वेरी हो रहा है, ये हमें इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके। हमें ये पता लगता है अगर मैं आज की बात करूं और पहले टाइम की बात करूं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो नॉलेज ऑफ चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें ये पता लगता है कि पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था एंड नाउ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके।
सो इंडेक्स नंबर हमें कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है, जिससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ईजिली मेजर कर सकते हैं कि क्या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पहले जो था और अब जो है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या वही है. Adjustment in salaries and allowances. Okay, so there could be a index number is also very helpful in adjustment in salary and allowances. Okay, index number से हमें पता लग जाता है कि इकोनॉमी में किस तरीके की ग्रोथ चल रही है, क्या इकोनॉमी डाउन चल रही है या फिर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, जैसे हमें टैक्स रेट का आइडिया लेना है कि टैक्स रेट जो है वो पहले ज़्यादा था अब ज़्यादा है, तो दीज आर हेल्पफुल कि आप जो है इंडेक्स नंबर से जो है हम सैलरीज और अलाउंसेस कि कितना सैलरी देना चाहिए या कितने अलाउंसेस जो हैं दैट शुड बी प्रोवाइडेड. ठीक है, तो वो हमें इंडेक्स नंबर से पता लग जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर बिजनेस कम्युनिटी. ओके, क्योंकि ये मेजर करता है एग्जैक्टली वी कैन से दैट इंडेक्स नंबर जो है वो पल्स है आपकी इकॉनमी की. ओके, और एक बैरोमीटर है जिससे हमें ये पता लगता है, इट्स अ काइंड ऑफ बैरोमीटर. बैरोमीटर से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि इकॉनमी जो है वो कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, इकॉनमी की कंडीशन कैसी है. उससे बिजनेस कम्युनिटी को क्या फ़ायदा मिलता है कि उसे ये पता लगता है कि उसे अब कितना मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितना ट्रेड करना है, कितना प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए. Okay, and next is information regarding प्रोडक्शन. ओके, सो इंफॉर्मेशन इंडेक्स नंबर आपको ये बताता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ प्रोडक्शन, कितनी नीड है प्रोडक्शन की, क्या अभी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए. तो इंडेक्स नंबर जो है वो बेस ईयर से कंपैरिजन करके दिस ईयर की कंडीशन बताता है, जिससे ये पता चलता है कि कितना प्राइस लेवल जो है वो अप हुआ है, कितनी जो है प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चर को करनी है. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू पॉलिटिशियंस. ओके, पॉलिटिशियंस के लिए किस तरीके से यूजफुल है, दैट पॉलिटिशियंस आर एग्जैक्टली मेकिंग पॉलिसीज. ओके, सो पॉलिसीज़ रिगार्डिंग द सब्सिडीज़, रिगार्डिंग द टैक्सेस, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती हैं. तो इंडेक्स नंबर हमें ये बताता है कि कंपैरिजन है. सो विद द कंपैरिजन हमें ये पता लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो है फॉर दिस सिचुएशन स्पेसिफिकली, कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी है कि टैक्स बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए, और गवर्नमेंट शुड मूव फॉर द सब्सिडी. So information regarding foreign trade. Okay, with this we can it is also helpful for the foreign trade कि foreign trade कितना आ रहा है. Okay, foreign trade means export and import जो है वो इकोनॉमी में कितना हो रहा है. ओके, अगर एक बिजनेसमैन इंटरेस्टेड है अपनी न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ठीक है, तो उसे क्या स्टडी करना पड़ेगा कि कितने प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, कितने वेजेस, इनकम, कितना सब चेंज हो रहा है. ठीक है, तो वो अपने प्लानिंग कर सकता है. सो उसे अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड कि कितना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है. ओके, कि क्या एक्सपोर्ट की क्या उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो उस चीज़ को उतना मैन्युफैक्चर किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट के लिए सेम इज एज इट इज़ हेल्पफुल है कि गवर्नमेंट अपनी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इसी इंडेक्स नंबर की हेल्प से बनाती है.